So today we are starting with Spring MVC. MVC is abbreviation stands for Model View Controller. Absolutely. Model View Controller. Okay. Now what this is? Okay, this is written as Model View Controller, but how it is read and how it is understood. Let's take a simple use case which we all have done in our JSP. Let's take a register student. Let's take a example of register student. So we are asking for the student to enter his roll number. We are asking the student to enter his name, and we are asking the student to enter his or her percentage, right? And then we have a button which says register. Correct? What is the name of this file? Okay, so this is a placeholder. This is a placeholder. Enter roll number. Enter student name and enter percentage. And as he enters that, I click on register. Then at the back end, I have a database. Correct? So this is my MySQL, and in that I should be having a table by the name student, and how many attributes? How many attributes? Three, right? That table has three columns. Who is creating this table? Spring is creating or the programmer is creating? Programmer will have to go and create this table, right? So I have given a spoiler alert over here. I have given a spoiler alert. Next topic is hibernate. Next topic is hibernate. This task of creating the table will be done by hibernate. You only have to focus on your Java part. What is happening in the database, everything will be done by hibernate. Table creation, record insertion. Okay, this is it. Then in the middle tier, I have my Java, my servlet, right? My server part. This is my client side, right? In the black, whatever I've written is client side. Okay, so this is my client machine. This is my server, application server or web server. If I'm making a website, then web server. If I'm making an app, then so nowadays web and the app server is one. And the third thing is my database server. In real time development, these all will be on three separate machines. These all three will be on three separate machines having three separate IP addresses. Right now, all of these three are on my single laptop, but in real time, it will not be the scenario. They will be on three separate machines having three separate IP addresses. Okay. So now when the user clicks on register, what happens? What are you all doing? You all are sending all this data individually by the request, and it is going to the web server, and the web server is reading them individually. Okay. Now what we can do is, why not convert this data into an object? Why not convert this data into an object? So if he enters roll number as 18, S name as
Virat and percentage as 78 points. Why not create this data into an object and then we send the object? Why not create this data into an object? So I'll take the notation of a hexagon for an object. This is a pentagon, right? 6 sides. Let's take a pentagon ka sign as an object. So let's create this data into an object. So whatever he is entering over here will not go individually now. Whatever has been entered over here will not go as individual text box elements and then you read them as get parameter. You store them into an object. So you need a class. Which class then? This object is of which class? Student class. So you'll make a class student. And what are the attributes of this class student? Any guesses? Colon and towards the left is the attribute. So what are they? Private, integer, roll number, and private string. Student name, S name, name, what is the attribute name? Student name, STUDENTNAME or STUDNAME or SNAME. How do you know SNAME? Because over here, towards the left of the colon is the name of the attribute. And then next is private double PER. Make sense? Okay, so this is the class. And when I click on register, what does the web XML do? See, server has a lot of layers. Server क्या है? Layered है. बहुत एक ही फाइल का नाम सर्वर नहीं है. एक बहुत सारे layers में ये काम करता है. ठीक है? तो जब when I click on register, what would happen in the web XML in the JSP servlet, or what would happen? What would happen behind the scenes in servlet when I would click on register? It would go to the बोलो भाई, form action. And what would it do with this action? It would search for it in the web.xml and the web.xml would route it to a particular servlet to the server side. Here what we do is whenever we click on register, the request directly goes to the web server. In the web server, the component which will act like web XML, which will receive the request, that is called as controller. So there are many layers in the server. Okay, I don't have space. I'll make them tiny layers. There are many layers. Okay, to be precise, at least 3 layers are there. You will get to know that later on. At least 3 main layers are there. That is controller, service, and repository. What are they? Controller, service, and repository. Okay. I have a habit of pronouncing the word which end with TORY as story. Someone says inventory, but I say cate. How do you all pronounce category or what? Category. I say category. तो वो और दिमाग में फिट होता कि ये क्या बोलने जा रहे हैं. ठीक है, इन्वेंटरी, रेपोजी, तो आप लोग टरी बोलते, टरी बोलो. तो ठीक है. So when this register is clicked, what happens? It goes to the server. Server is the layered. So the part of the server which will first receive the request, which will welcome, or what you say, reception ना. आप एक बड़े कॉम्प्लेक्स में गए
तो आप भूल जाते हैं ना कहाँ जाते हो, आप पहले किसको जाके मिलते हैं? आपने कंपनी ज्वाइन की, आपका फर्स्ट डे है कंपनी में, तो जहां पर सारे आईटी के बंदे बैठ के प्रोग्रामिंग करते हैं, आप डायरेक्ट वहां चले जाते हैं क्या? लैपटॉप खोल के बैठ जाते हैं? You go first meet the reception and you show your email or the hard copy of the email which you have got from the company that my name is Shivam Shaste and today 8th of April I was supposed to join the company at this premises. So they will see, okay, then they will line you up with your coordinator or your branch manager or XYZ. So the reception of the application is very large. There are lots and lots of players. मैं तो सिर्फ 3 बताया हूं, और भी आप लेयर्स ऐड कर सकते हैं एज एंड व्हेन द एप्लीकेशन विल ग्रो। हमने जब अपना पहला बनाया था सर्वलेट, कितना छोटा था, अभी जो आपने प्रोजेक्ट बनाया उसमें कितने हैं, बहुत सारे लेयर्स बढ़ गए ना। तो ऐसे ही एप्लीकेशन स्वेल होगा, बलून की तरह वो स्केल होगा। क्या बोलते हैं उसको? एप्लीकेशन विल बिकम लार्जर एंड लार्जर एंड लार्जर, एंड इज कॉल्ड एज स्केलेबिलिटी। So as the application scales, the number of layers will increase. But these are the basic 3 layers: controller, service, and so the request which comes from the client side first is received by whom? Controller. Then the controller will pass it on to whom? Service. Service will pass it on to whom? Repository वो layer है, अपने भाषा में समझेंगे तो, जो JDBC का काम करता है। डेटाबेस से इंटरेक्शन का काम किसका है? JDBC का है। तो रिपोजिटरी लेयर वो लेयर है जो डेटाबेस में डेटा स्टोर करेगा और डेटाबेस से लाके देगा, उसको डेडिकेटेड वही काम दिया है। तो कमिंग बैक टू गणेश's आंसर, तो गणेश कैन से इवन दो द प्रोजेक्ट इज मेड इन पाइथन बट आई वाज हैंडलिंग ओनली द repository layer, means I was only writing the queries, SQL queries, बाकी मुझे और क्या था ये सब मुझे कुछ मालूम नहीं है। तो मैं येलो वाला जो पोर्शन है, आप बोल सकते हैं आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ ऑल दीज, आई वॉज ओनली हैंडलिंग विच लेयर? रिपोजिटरी, द लेयर विच कम्युनिकेट विद द डेटाबेस। ठीक है, तो बट हम डायरेक्टली रिपोजिटरी को टच नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? तो आपके एक हफ्ते पहले आपके दोस्त ने ज्वाइन किया, आप उसको फोन करेंगे, हाँ भाई तो कौन से फ्लोर पे है? बोले मैं 7वें माले पे हूँ, मेरे ऑफिस में बैठा हूँ, उधर एक चेयर है क्या? बोले हाँ है ना। आप वहां जाके बैठ गए उसके बाजू में, जाएंगे उधर आप? तो डायरेक्टली आप रिपोजिटरी को टच नहीं कर सकते, आपको किसके थ्रू आना पड़ेगा? कंट्रोलर के थ्रू आना पड़ेगा। तो कंट्रोलर इज सिंपली, इफ यू हैव अंडरस्टूड web.xml then you have understood 95% of the controller. Those who have understood what web.xml was doing in servlet, they have understood what controller would do. तो कंट्रोलर सिर्फ क्या करेगा? इस रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा और फिर किसको देगा? सर्विस पूरा ब्रेन है, सर्विस पूरा क्या है? जो मास्टर माइंड है पूरे एप्लीकेशन का, वो कौन है? जितना बिजनेस लॉजिक लगेगा, जितना कोडिंग, हम जिसको बोलते हैं ना कोडिंग, जो भी आपका जो आपने पढ़ा है कोर जावा में, एडवांस जावा में, कलेक्शंस में, जो भी पढ़ा है आपने, जावा का जो पढ़ा है वो कौन सा लेयर है? सर्विस लेयर है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर होता है टीम का, वो सर्विस लेयर संभालता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन। टेस्ट क्रिकेट के अंदर 1 डाउन और 2 डाउन जो आता है ना, वो टीम का सबसे बड़ा बैकबोन होता है। सचिन वुड प्ले 2 डाउन, रिकी पॉन्टिंग वुड प्ले 2 डाउन, विराट कोहली इज प्लेइंग 2 डाउन। मतलब ओपनर आ गए, 1 विकेट गिरा तो कौन आता? विराट कोहली 1 डाउन पे आता या 2 डाउन पे आता? प्रमोट कर दिया उसको। तो जो सेकंड पे आता है वो टीम का मेन बैकबोन होता है, उसकी विकेट निकालना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे इस पूरे खेल में सबसे मेन प्लेयर कौन है? सर्विस। तो इसको संभालना है सबसे ज्यादा, क्योंकि कंट्रोलर का काम सिर्फ लेना और देना है, एक हाथ से ले एक हाथ से दे। कंट्रोलर बिल्कुल दिमाग लगाता नहीं है। वेब एक्सएमएल दिमाग लगाता था क्या? वॉज देयर एनी इफ कंडीशन, एफ एल, फॉर लूप, कि वेब एक्सएमएल कंडीशन करके भेज रहा है कि इसको भेजो उसको नहीं भेजो, ये रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करो इसको अप्रूव करो?
क्या करता था वो, ब्लाइंडली ये लो इसको दो, तो वो काम करता है कंट्रोलर। तो सर्वर का जो एंट्री पॉइंट है, यानी कंट्रोलर तक आपने रिक्वेस्ट पहुंचा दिया, मतलब आपने सर्वर तक बात पहुंचा दी। ठीक है, आपको 8 को ज्वाइन करने बोला था, आपने आके वो हार्ड कॉपी ऑफ योर एप्लीकेशन उस रिसेप्शनिस्ट को दे दिया, आपने आपकी ड्यूटी पूरी कर दी। कंपनी कैन नॉट ब्लेम यू कि यू आर सपोज टू रीच ऑन 8 एंड यू हैव नॉट रिपोर्टेड, वी आर कैंसिलिंग योर ऑफर लेटर। बोले नहीं, आई हैड कम एंड आई हैड डन माई जॉब। तो वो 15 मिनट के लिए आप आके कंपनी में वो काम करके चले गए, फिर आपको उसने बोल दिया ओके शिवम, साइन ऑन दिस डॉक्यूमेंट दैट यू हैव रिपोर्टेड, वी विल लेट यू नो नाउ व्हेन टू कम नेक्स्ट। ठीक है, फिर आपको कोई टच नहीं कर सकता कि भाई आपने फॉलो नहीं किया, कि भाई 8 को आपका ज्वाइनिंग था और आपने रिपोर्ट नहीं किया है, तो आपका ऑफर लेटर रिवोक हो जाता है। आप वो स्लिप दिखा दोगे, देखो मैं 8 को आया था, मेरे को ये स्लिप मिली थी। समझ में आ रहा है? तो कंट्रोलर तक आपने मैसेज पहुंचा दिया, मतलब क्लाइंट ने क्या किया, सर्वर तक डेटा पहुंचा दिया है, फिर कंट्रोलर आगे पहुंचाते रहेगा। तो क्लाइंट का टास्क सिर्फ क्या होता है, कंट्रोलर तक टच कर दे, कंट्रोलर तक टच कर दिया मतलब सर्वर तक रिक्वेस्ट पहुंच गई है। तो ये समझ में आ गए कंपोनेंट सारे। अब इसके अंदर जो क्लाइंट है, जो आपका ये HTML पेज है ना, क्या होगा ये, रजिस्टर स्टूडेंट है ना, रजिस्टर स्टूडेंट डॉट। तो जो क्लाइंट को दिखने वाला है, जो क्लाइंट को क्या दिखता है, क्लाइंट को क्या दिखता है, HTML, उसको बोलते हैं व्यू। क्या बोलते हैं उसको, आई एम रनिंग आउट ऑफ कलर्स नाउ, लेट्स टेक ऑरेंज। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको पढ़ लिखते हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर, पर पढ़ते कैसे है, व्यू। ठीक है, कंट्रोलर तो कंट्रोलर आ गया। ठीक है, तो कंट्रोलर बोले तो क्या, इन शॉर्ट सर्वर को मैंने रिक्वेस्ट भेज दिया, तो मेरा अगर रिक्वेस्ट कंट्रोलर तक आ गया है, मतलब कहाँ चला गया है वो, सर्वर पे। तो सर्वर का एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, क्या है, तो वो रिसेप्शनिस्ट को मैंने आके मेरा डॉक्यूमेंट देके साइन कर दिया, मतलब मैंने कंपनी को रिपोर्ट कर दिया। हालांकि रिपोर्ट किसको किया, एक रिसेप्शनिस्ट को, पर क्या बोल रहा है, कंपनी को रिपोर्ट। आपको फिर तुरंत आ जाएगा मेल, ओके शिवम, वी हैव सीन दैट यू हैव रिपोर्टेड टू द कंपनी, द नेक्स्ट मेल विल कम एंड विल गिव यू ऑल द डिटेल्स अबाउट योर designation, who is your manager. In the next visit you can directly come and meet the manager, और आपका सैलरी चालू हो जाता है। फिर आपको 6 महीने के बाद भी वो मेल आए, आपको 6 महीने की सैलरी आती रहती है, सिर्फ आपकी वो फॉर्मेलिटी पूरी करने के ऊपर। अगर आप वो नहीं आते 8 तारीख को, तो आपको 6 महीने के बाद काम मिलने वाला होता है, तो आपकी 6 महीने की सैलरी नहीं आती। वो सिर्फ 15 मिनट के काम से आपको क्या हो गया, सैलरी आपका एक्टिवेट हो गया। तो यानी कंट्रोलर तक मैसेज पहुंच गया, मतलब सर्वर तक मैंने बात पहुंचा दी। तो कंट्रोलर क्या है, पूरे के पूरे सर्वर का एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो व्यू कौन है, जो क्लाइंट को दिखता है, HTML फाइल को व्यू बोलेंगे, क्या बोलेंगे, और कंट्रोलर तो कंट्रोलर है। और ये दोनों बैडमिंटन की प्लेयर है, कौन है दोनों, ये एक ये बैडमिंटन का प्लेयर है, एक ये बैडमिंटन का प्लेयर है। उनके बीच में जो शटल कॉक है वो तुम्हारा मॉडल है। कौन है, जो डेटा से वो लोग ट्रेड करेंगे, जो डेटा सेंड और रिसीव होगा, किसमें किसमें, मॉडल, और जो डेटा सेंड और रिसीव होगा किसके बीच में, व्यू और कंट्रोलर के बीच में, वो मॉडल के रूप में होगा। किसके रूप में होगा, मॉडल के रूप में होगा। तो इफ यू रिमेंबर व्हेन आई वाज टीचिंग स्प्रिंग कोर, तो जो मैंने क्लास बनाई थी इंजन गियर, वो कौन से पैकेज में डाली थी, तुम लोगों ने ऑब्जर्व नहीं किया, हाँ। तो मॉडल क्या है, तुम लोग कौन से हैं, ये है ना। तो मैंने कितने पैकेज बनाए थे, एक ऐप, एक कॉन्फ़िग और एक, तो मॉडल में क्या होगा, वो डेटा होगा। तो हमारे पास अगर हमको स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है, तो स्टूडेंट क्लास कौन सी क्लास होगी हमारी,
मॉडल क्लास होंगी। तो ये सारा डेटा से हम लोग क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और ऑब्जेक्ट को भेजेंगे गोइंग फॉरवर्ड। तो वो ऑब्जेक्ट कौन से क्लास का होगा वो ऑब्जेक्ट जिस क्लास का होगा वो मॉडल क्लास बोली जाती है। क्या जाती है? मॉडल क्लास। तो जो डेटा फ्लो होता है बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर, दैट इज कॉल्ड एज द मॉडल। तो ये तीन मेन कंपोनेंट्स है। तो लिखना है MVC और पढ़ना क्या है? व्यू मॉडल। तो व्यू क्या हो गया भाई? जो क्लाइंट को दिखता है, जो क्लाइंट को दिखता है वो क्या है? व्यू। व्यू है। ओके, आपने रजिस्टर कर दिया। आफ्टर रजिस्टर क्या करते थे हम लोग? उसको आप उस टेबल में दिखाते थे ना। हमने ये स्टूडेंट ऐड कर दिया, तो हाउ डू यू वेरीफाई कि ऐड हुआ है कि नहीं? उसको हम दिखाते टेबल में। तो वो एक और व्यू होंगी फिर हमारी। क्या होंगी? एक और व्यू होंगी, शो ऑल स्टूडेंट .html। तो कितने व्यू हो गए हमारे पास? रजिस्टर स्टूडेंट और शो ऑल स्टूडेंट। तो जब ये रजिस्टर पे क्लिक करेगा तो ये कहाँ पर आएगा? कंट्रोलर में आएगा। तो कंट्रोलर में एक फंक्शन होगा जो उसको रिसीव करेगा। ठीक है, देखो कंट्रोलर में क्या होगा एक, तो ठीक है पब्लिक को मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, पब्लिक वी लेट से ऐड स्टूडेंट। क्या फंक्शन बनाया मैंने? ऐड स्टूडेंट। ठीक है, अब ये ऐड स्टूडेंट क्या लेगा एज अ पैरामीटर? ये सारा डेटा लेगा। तो वो डेटा इंडिविजुअली आ रहा है कि कलेक्टिवली आ रहा है? ऑब्जेक्ट कौन से क्लास के ऑब्जेक्ट से आ रहा है वो? तो वो इसका पैरामीटर क्या रहेगा? स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट। सही है। ठीक है, अब कंट्रोलर के अंदर एक ही होगा क्या मेथड? क्या बहुत सारे मेथड होंगे? अपने वेब एक्सएमएल में एक ही था क्या? सर्वलेट मैपिंग, क्या बहुत सारे थे? एंड तक तो वी हैड काउंटेड 200 लाइन इफ यू ऑल रिमेंबर। तो इसमें भी बहुत सारे फंक्शन होंगे। क्या होंगे? तो इसको किस मालूम रजिस्टर करोगे मुझे इस पे जाना है, तो हम एक्शन से खेलेंगे। तो इस पे हम लगा देंगे एनोटेशन, लगा देंगे @request मैपिंग। क्या लगा देंगे? क्या? रिक्वेस्ट मैपिंग। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ और उसको दे देंगे स्लैश, क्या दे देंगे? यानी जब सबमिट पे क्लिक हो तो कहा जाए कंट्रोलर में। कंट्रोलर में बहुत सारे मेथड्स है, तो कौन से मेथड को जाके देना है इसको? तो वो चेक करता है कि भाई इस फॉर्म का एक्शन क्या था, उस मेथड के बाद जाओ जिसका रिक्वेस्ट मैपिंग क्या है। तो वो जो डेटा है 18 विराट और ये किसमें आ जाएगा? इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में। समझ में आ रहा है? तो ऐसे पूरा खेल चलेगा। ये है स्प्रिंग MVC का आर्किटेक्चर। ठीक है, ओके। अब समझो मैंने एक नया फॉर्म बनाया, डिलीट स्टूडेंट। फर्ज कर लो मैंने एक सिंपल सा बनाया, डिलीट स्टूडेंट नाम से मैंने एक फॉर्म बनाया। नाउ यू ऑल टेल मी व्हाट शुड हैपन इन द बैकग्राउंड। ठीक है, मैं सिर्फ उसका एम्प्लॉय नंबर लूंगा, लेट से। यू कैन पास अ ऑब्जेक्ट, यू कैन पास अ इंडिविजुअल डेटा ऑल्सो। क्या बोलूंगा मैं? एंटर रोल नंबर। अब ये मैं भेजूंगा मैंगो को। सिंपल सिंपल नाम ले रहा हूं मैं। अब बोलो क्या होना चाहिए बिहाइंड इन द कंट्रोलर? क्या होना चाहिए कंट्रोलर पे? क्या होना चाहिए? When I click on the delete button, when I click on the delete button, what should happen? समझो ये कंट्रोलर है, तो एक क्या होगा? पब्लिक वॉइड एक फंक्शन होगा, क्या? डिलीट स्टूडेंट। पैरामीटर किस टाइप का लेगा वो? अभी तो एक इंटेज है ना, सिर्फ 18 ही पास कर रहा हूँ ना मैं, तो फिर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर बहुत सारा डेटा पास कर रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके भेजेंगे ना। अभी सिर्फ क्या पास कर रहा हूँ? एक ही वैल्यू पास कर दो। क्या पास कर रहा हूँ मैं? इंटीजर रोल नंबर। अब मुझे कैसे मालूम है कि मुझे इस फंक्शन पे आना है? तो क्या होगी ऊपर जाके @। अब सारा खेल एनोटेशन का है। मैंने बोला था तुमको सारा खेल किसका है अभी? एनोटेशन। तो जितने एनोटेशन आपको
याद है आप उतने बड़े डेवलपर हैं, तो फिर क्या है, रिक्वेस्ट मैपिंग किस पे, मैंगो, करेक्ट। तो इस पे आएंगे ये लोग, रिक्वेस्ट मैपिंग मैंगो। वैसे बहुत सारे मेथड्स होंगे कंट्रोलर में, आपको कौन से मेथड पे जाना है आपका रिक्वेस्ट मैपिंग से मालूम पड़ेगा, यस और नो। फिर आगे जाके हम लोग रिक्वेस्ट मैपिंग, ये जेनरिक है। रिक्वेस्ट मैपिंग क्या है, रिक्वेस्ट मैपिंग ये क्या है, ये जैसे क्रोसिन होती है, क्रोसिन, ओके। So you have a pack of crocin at home in the first aid box. Body pain, you pop up crocin. Fever, you pop a crocin, है ना। और क्या, और क्या क्या है, थोड़ा सा वायरल फील हो रहा है, you pop a crocin, ठीक है, अंडर द डॉक्टर्स एडवाइस, ओके, डोंट डू इट लाइक दैट। तो ये क्या है, रिक्वेस्ट मैपिंग हर काम के लिए काम आ रहा है। लेटर ऑन हम लोग क्या करेंगे, अगर मुझे क्राउड ऑपरेशन करना है, क्या करना है, ठीक है, इसको बोलते हैं HTTP मेथड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, HTTP मेथड, ओके। ये सब कंट्रोलर में रहेंगे, किसमें रहेंगे सारे, ये कंट्रोलर में रहेंगे, आप समझ जाओगे नाम से। सी बोले तो क्या कर रहे हैं हम लोग, क्रिएट, एक रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं ना, या एडिंग अ रिसोर्स। व्हाट आर यू डूइंग बाय सी, व्हाट आर वी डूइंग, वी आर एडिंग अ रिसोर्स। तो उसके लिए हम यूज करते हैं पोस्ट मैपिंग। क्या करते हैं, तो उसके लिए हम ये यूज नहीं करेंगे यहाँ पर। फिर ये जेनरिक तो रिक्वेस्ट मैपिंग है, सब जगह यूज कर सकते हैं उसको, बट हम यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है ना, तो यहाँ पर हम लोग रिक्वेस्ट मैपिंग यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे क्या, @ पोस्ट मैपिंग, ठीक है। और यहाँ पर फिर क्या यूज करेंगे, मेथड क्या यूज करेंगे इधर, अगर क्रिएट कर रहा हूँ तो मेथड क्या यूज करूंगा इधर। फॉर्म में क्या होते हैं, दो होते हैं ना, एक्शन और मेथड। मेथड पोस्ट यूज करेंगे, ठीक है। और रीड के लिए @ गेट मैपिंग, अपडेट के लिए @ पुट मैपिंग, और डिलीट के लिए @ डिलीट मैपिंग। ये सब क्या है, HTTP मेथड्स। कहाँ होंगे ये सब, कंट्रोलर के अंदर होंगे। तो एक तो HTTP मेथड और एक HTTP स्टेटस कोड, ये आपको अच्छे से आना चाहिए डिफरेंसेस। तो हमने, जब मैंने सबमिट किया और एवरीथिंग इज ओके, तो आता है 200, क्या आता है, ठीक है ना, एवरीथिंग इज ओके। यू ऑल नो द 404 ना, क्या है, पेज नॉट फाउंड, रिसोर्स नॉट फाउंड, है ना। तो ये वो है। तो ऐसे बहुत सारे स्टेटस कोड है, ये सीरीज में आते हैं, सीरीज में 200 की एक सीरीज है, 400 की एक सीरीज है। तो 2, उसके बाद जो भी नंबर रहेंगे, फिर 3 जो भी नंबर रहेंगे, 4 जो भी नंबर रहेंगे, और 5 जो भी नंबर रहेंगे, ये सब, ठीक है। समझ में आया तो लोग का आर्किटेक्चर पूरा, ओके। अब हम लोग, अब कंट्रोलर जो है ना, कंट्रोलर ये भी दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं, तो कंट्रोलर एक होता है सादा कंट्रोलर, और एक होता है रेस्ट कंट्रोलर। कौन होता है, अब समझो इसको, ठीक है, बात को समझो। देखो, आजकल क्या होता है, बैकएंड कंपनी एक बनाती है, यानी सर्वर साइड कोड जो हम बोलते हैं ना, बैकएंड। डेटाबेस को बैकएंड नहीं बोलते, बैकएंड किसको बोलते हैं, सर्वर साइड। तो सर्वर साइड का जो भी कोड है ना, उसको बैकएंड बोलते हैं। उसका एक पार्ट डेटाबेस से जुड़ता है। तो बैकएंड जो है किससे करता है कम्युनिकेट, बैकएंड को डेटा डेटा चाहिए तो किससे लेता है डेटा,
डेटाबेस। तो डेटाबेस एक पार्ट है बैकएंड का। तो ये पूरा का पूरा इन दोनों को अगर क्लब करेंगे तो ये बैकएंड माना जाएगा। ठीक है, ओके। तो कंपनी क्या करती है, बैकएंड एक ही बनाती है, और वही बैकएंड से अगर आपको मोबाइल पे दिखाना है तो वो लोग एंड्रॉयड डेवलपर्स हायर करते हैं जो यही कंट्रोलर यूज करते हैं, डेटा को पुल करते हैं और कहाँ दिखाते हैं, मोबाइल पे। और अगर आपको बनाना है वेब एप्लीकेशन तो यही डेवलपर्स, दूसरे डेवलपर्स रहते हैं समझो, जो वेब डेवलपर्स रहते हैं, और वो लोग किस पे डिस्प्ले करते हैं उसको, वेबसाइट पे। ये क्या हो गया भाई, मोबाइल ऐप ना। तो हर कंपनी आजकल क्या बनाती है, फ्लिपकार्ट का मोबाइल ऐप भी है, फ्लिपकार्ट का क्या है, वेबसाइट भी है। हर फेमस, तो सबका क्या है, ऐप भी है और वेबसाइट भी है हर प्रोडक्ट का। तो इस मोबाइल ऐप का जो बैकएंड है वो अलग है और वेबसाइट का बैकएंड अलग है। क्या लगता है आपको? नहीं, सर्वर साइड सेम है। आप सिर्फ डेटा को कंट्रोलर से डेटा मंगाओ, कंट्रोलर को क्या दो, आप रिक्वेस्ट दो, कंट्रोलर विल गिव यू अ रिस्पॉन्स। आप यहाँ से भी इसको कांटेक्ट करो, whom टू कांटेक्ट, कंट्रोलर, बिकॉज इनके लिए एंट्री पॉइंट कौन है, ये तो व्यू है ना सारे, ये दोनों सिर्फ क्या है, कौन सा लेयर है ये, तो क्लाइंट को दिख रहा है ना, इसमें क्लाइंट को दिखता है, तो ये कौन से लेयर हो गए, व्यू लेयर हो गए। तो व्यू किससे करता है कम्युनिकेट, सर्वर साइड में, कंट्रोलर उनके लिए सिंगल एंट्री पॉइंट है। फिर कंट्रोलर आगे लेयर्स में बटा हुआ है, कंट्रोलर के आगे बिजनेस लॉजिक के लिए सर्विस लेयर है, फिर डेटाबेस कम्युनिकेशन के लिए रेपोजिटरी लेयर है, ब्ला ब्ला। तो रिक्वेस्ट आया कंट्रोलर को, और कंट्रोलर एक वेब पेज रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, वेब पेज। तो कहाँ जाएगा वो, ए के पास या बी के पास, बी के पास क्या आएगा, वेब पेज डॉट HTML ना। तो हमने रिक्वेस्ट किया कंट्रोलर को, कंट्रोलर में रिटर्न में हमको वेब पेज ही दे दिया, क्या दे दिया, वेब पेज। वो काम करता है कंट्रोलर। और एंड्रॉयड में क्या होता है, आप सिर्फ डेटा मंगाते हैं, क्या मंगाते हैं, और आप फिर उसको डेटा को अपने हिसाब से शो करते हैं एंड्रॉयड के टूल्स यूज करके। तो जो कंट्रोलर है आपको वेब पेज नहीं भेजता, आपको क्या भेजता है, क्या भेजता है आपको, क्या भेजता है, उस जेसन डेटा को आप, जो भी आपने पढ़ा है iOS टेक्नोलॉजी या एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी, उसके हिसाब से फॉर लूप लगा के उसके फॉर्म में दिखाते हैं। उसका टेबल्स अलग होगा, उसका दिखाने का फॉर्मेट अलग होगा। तो कंट्रोलर ने आपको एक फुल्ली प्रिपेयर्ड वेब पेज रिटर्न किया, क्या सिर्फ रॉ डेटा रिटर्न किया, इस मोबाइल ऐप के चक्कर में। अगर आपको मोबाइल ऐप पे दिखाना है, कोड बेस सिंगल रहेगा, जो बैकएंड है वो दोनों का सेम है, तो प्रोडक्ट सब सेम ही दिखते। अगर फ्लिपकार्ट के ऐप पे खोलो या फ्लिपकार्ट की साइट पे खोलो, प्रोडक्ट का चेंज होता है क्या, हाँ, प्रोडक्ट का साइज विल डिस्प्ले, साइज छोटा बड़ा दिखेगा, आपको ज़्यादा स्क्रॉल करना पड़ेगा। बट तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, जब आप कंट्रोलर को रिक्वेस्ट भेजते हो, अगर आप बना रहे हो मोबाइल ऐप, तो कंट्रोलर विल सेंड यू व्हाट, द जेसन डेटा। समझो आपने दिखाना है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, क्या दिखाना है, तो यहां पर आपको वो एक वेब पेज बना के भेजेगा, क्या बना के भेजेगा, जिसमें टेबल होगा और टेबल के अंदर पूरा का पूरा स्टूडेंट्स का डेटा होगा। तो रिस्पॉन्स क्या आया, वेबसाइट के लिए रिस्पॉन्स क्या आया, एक वेब पेज आया ना, पूरा बना बनाया वेब पेज आया। यहाँ पर सिर्फ क्या आएगा, जेसन डेटा आएगा, वो आपको लेके फॉर लूप लगाना है, और मोबाइल में कैसे दिखाते हैं वो आपको वहां देखना है। वो कौन करेगा, मोबाइल ऐप डेवलपर करेगा। आपका काम क्या है, स्प्रिंग बूट डेवलपर का, फिर
स्प्रिंग बूट डेवलपर का काम सिर्फ इस ऑरेंज बॉक्स में है। आपका काम क्या है? सिर्फ उसको डेटा फॉरवर्ड कर देना। क्या कर देना? जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैं तुमको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर जो है ना, ये वेबसाइट्स होते हैं। देखो ये वेबसाइट्स होते हैं। देखो ये फेक स्टोर एपीआई है। देखो अब ये सिर्फ मुझे क्या रिटर्न कर रही है? क्या रिटर्न कर रही है? ये व्हाट डज द स्क्वायर ब्रैकेट मीन? लिस्ट। व्हाट डज एंगुलर ब्रैकेट मीन? व्हाट डज दिस कर्ली ब्रैकेट मीन? ऑब्जेक्ट। तो मुझे क्या दे रही है रिटर्न में? सिर्फ ये लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट में लूंगा और मुझे अगर उसको ऐप पे दिखाना है, एंड्रॉइड ऐप में, तो इसको मैं प्रेजेंटेबल बनाऊंगा। इसमें सब कुछ है। देखो इमेज का भी पूरा है। अगर मैं ये लूंगा तो मुझे इमेज भी दिखा देगा। कौन सी इमेज? ये वाली इमेज है। समझ में आ रहा है? तो मुझे सिर्फ क्या रिटर्न किया कंट्रोलर ने? रॉ डेटा। क्या रिटर्न किया? अब इस डेटा को फॉर लूप लगा के मैं क्या करूंगा? एंड्रॉइड के हिसाब से मैं अपने फोन में दिखा दूंगा। वो काम कौन करेगा? एंड्रॉइड डेवलपर। वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम एज अ स्प्रिंग बूट डेवलपर का क्या है? सिर्फ क्या रिटर्न कर दो? जेसन डेटा। ओके। अभी अगर मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ, कौन हूं मैं? मैंने रिएक्ट भी किया है, तो फिर क्या करूंगा मैं? डेटा भी आ गया मेरे पास। इस डेटा को कैसे दिखाना? वेब पेज का अपन ने किया है, तो मैं क्या रिटर्न करूंगा? एक फुल्ली फर्निश्ड वेब पेज। तो अगर आप कंट्रोलर से एक वेब पेज चाहते हो तो कंट्रोलर यूज करो, और सिर्फ रॉ डेटा चाहते हो तो रेस्ट कंट्रोलर यूज करो। ये सिंपल सा उसका लॉजिक। रिस्पॉन्स आपको कैसा चाहिए? So if you are looking for a response, that the response should come in the form of a JSON. Use what? @REST controller. And if you want the response should come as a fully prepared web page, use @controller. Use what? @controller. तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम लोग? तो @controller से हमको रिस्पॉन्स क्या आएगा? वेब पेज आएगा। और @REST controller से रिस्पॉन्स क्या आएगा? सिर्फ आपका रॉ डेटा है। तो अगर आप सिर्फ स्प्रिंग बूट डेवलपर बोल के लगे, क्या लगे आप? स्प्रिंग बूट डेवलपर। मेरा जॉब प्रोफाइल डेजिग्नेशन है स्प्रिंग बूट डेवलपर का। तो आपका काम सिर्फ इस ऑरेंज बॉक्स तक है बस। उसके बाहर आपको कोई पूछेगा नहीं। यानी आपने इस फॉर्मेट में डेटा रिटर्न कर दिया, आप लॉग आउट कर सकते हैं। अब देखो इसमें बहुत सारे क्रड ऑपरेशन है। ये फिक्स एपीआई है ना। देखो इसमें सारे क्रड ऑपरेशन है। देखो यहाँ गया मैं। देखो ये प्रोडक्ट पे क्लिक किया, सारे प्रोडक्ट्स आ गए। अब मुझे चाहिए सिर्फ तीसरा प्रोडक्ट। क्या चाहिए? क्या है वो? क्या है वो? मेंस कॉटन जैकेट। तो आपने अगर एक एंड पॉइंट बना दिया कि अगर आप स्लैश करके प्रोडक्ट का आईडी दोगे और इसको हिट करोगे तो यू विल गेट दैट प्रोडक्ट ओनली। वो आ गया, काम कर रहा है, आपने टेस्टिंग कर लिया, आप लॉग आउट कर सकते हैं। तो आप सिर्फ क्या रिटर्न कर रहे हो? रॉ डेटा। किस फॉर्मेट में? रेस्ट कंट्रोलर। तब क्या यूज करोगे आप? रेस्ट कंट्रोल। पर आपका बॉस बोलता है नहीं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि आप मुझे जो है पूरा का पूरा बना के दो। अब देखो यही एपीआई को हमने कंज्यूम किया है रिएक्ट में। आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। अब जब मैं इसको हिट करूंगा, अब वही चीज देखो कैसे दिखा रहा हूं मैं। कैसे दिखा रहा हूं? वही देखो, यही नाम है फुल स्टैक नंबर 1। वही 20 प्रोडक्ट है। लास्ट प्रोडक्ट क्या था? ये डैनी वुमेन्स टी शर्ट कैजुअल कॉटन शॉर्ट। यही है। ये हमने और 2 प्रोडक्ट ऐड किए थे टेस्टिंग के लिए। ये रहा था। तो ये प्रोडक्ट हम लोग कैसे दिखा रहे हैं अभी?
तो क्या यूज किया होगा इधर? अगर आपको वेब पेज दिखाना है तो कंट्रोलर, और अगर आपको सिर्फ डेटा दिखाना है, सिर्फ मेरा काम ये भाई मैं ये देखो देके भेज दूंगा। अब तो अगर मोबाइल डेवलपर है तो मोबाइल पे उसको पार्स कर लूप लगा के दिखा मोबाइल के HTML के हिसाब से, और अगर तू वेब डेवलपर है तो तू वेब डेवलपर में बना, मेरा काम आई एम आउट ऑफ इट। हाँ, वो लोग अगर ये आर्ग्यू करे कि यार हम लोग ये हिट कर रहे हैं एक्शन को, ये एक्शन काम नहीं कर रहा है, अगर ये लोग ऐसा बोले तो फिर आपका काम है वो करना। तो ये अगर डेटा ऐसे भेजना है तो @ कंट्रोल, और ऐसा भेजना है तो दोनों के अलग अलग खेल है। समझ में आ रहा है? ओके, ये हमने अभी कहाँ दिखा रहे हैं? रिएक्ट के अंदर दिखा रहे हैं। किसमें दिखा रहे हैं? रिएक्ट में। तो हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, फिर अभी इंडस्ट्री में क्या करते हैं नॉर्मली, अगर आपके स्प्रिंग बूट के अंदर ही अगर आपके पास एक लाइब्रेरी है, चलो ठीक है वो छोड़, बाद में डिस्कस करेंगे। तो कंट्रोलर कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के हैं। यहाँ पर भी हमने है ना रेस्ट कंट्रोलर यूज किया है। क्या यूज किया है? हमने रिएक्ट को रॉ डेटा दिया है और रिएक्ट को बोला है कि तू उसको लूप लगा के दिखा। जावास्क्रिप्ट यूज किया है। क्या यूज किया है? जावास्क्रिप्ट। और फिर जब सिंगल पे क्लिक किया तो सिंगल वाला फोटो दिख जाएगा। दिख रहा है? ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो ऐड प्रोडक्ट वाला फॉर्म खुल जाएगा। तो इस पे क्लिक करोगे तो प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। इस पे आप जो भी टेस्ट 100 टेस्ट टेस्ट ये पूरा वैलिडेशन किया है, तो इसमें आपका ठीक है, ये ले फॉर्म में हो गया। रजिस्टर प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली, ओके। फोटोशॉप लास्ट में आ जाना चाहिए था, रिफ्रेश करें तो लास्ट में आता है क्या देखते हैं। आया? आ गया? तो इसको लॉग इन भी कर सकते हैं आप, रजिस्टर भी कर सकते हैं, कार्ट में कितने प्रोडक्ट को देख सकते हैं। So like this you will be working around with your project. So let's come back over here. So what are we doing? MVC, right? One second guys. What is REST controller and what is controller? Okay, so now let's try to do a basic program. Let's try to do a basic program now. So okay, so this we have already done installation of Tomcat. Download, add the zip file, extract it. Okay, then make a dynamic web project. So see what we have to do now. What we have to do, Tomcat is done, right? So first make a dynamic web project. So let's come over here and make what? So what are we following? ITP Shivam first. So file, new, other, dynamic web project, ITP Shivam first, स्प्रिंग MVC, ठीक है। Tomcat 9 ये भी ठीक। ये हो गया, तो ये हो गया, ये ठीक है, फिनिश हो गया। सर्वर को स्टार्ट करने आता तुम लोगों को, ठीक है।